Hello all and welcome to Mechanical Talks IIT Bombay Diaries. I am Prem Kumar and I will be your host for today's video recording session. Today we have Mr. Aniket with us. He is a final year MTech student, batch of 21. He has been selected in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company as a data engineer. Before getting into the video, I would like to briefly introduce him to you guys. Like Aniket completed his BTech in mechanical engineering from MIT Aurangabad and was a university second topper. He joined IIT Bombay as an intern in his final semester in NCAIR lab and continued as a project assistant for an year and joined IIT Bombay as an MTech student with manufacturing specialization after that. Welcome Aniket to the Mechanical Talks. Before getting any further into the video, just start this video session by briefly explaining about the role you are selected for. Yes, so I'm a data engineer over there in TSMC. So my role would be, as TSMC is a manufacturing firm, so it's the largest chip manufacturer company in the world. Yeah. And as I'm a mechanical engineer, so they are trying to build some kind of a ML model based on their manufacturing data, so as to optimize them. So that is what I can understand from the JAP and from the interview. And I think they are applying the IoT devices at their shop floor, gathering large data. We call it big data, and they are going to analyze it to optimize their process parameter so as to increase their productivity and reduce the cost. Which all department this JAP was open for which you are selected? I think it was open for all. For all Everyone could apply, just for PGs, MTech and PhD for all branch. Okay. And as far as I remember, you were only one student from whole mechanical who got Yes. shortlisted for this Yes. interviews. So what? And there were no other criteria. There was no test and there was no SOP. Only purely based on resume you were shortlisted. Yes. So what do you think was different in your resume than others, which made it possible for you? So I don't know exactly, but as per Mm. me, it was a combination of mechanical with IoT and ML. Also, there was one word was there like called digital twin, which was a new technology. So I have mentioned that quite a time in my resume. I think that made me separate, like that separated me from rest of the crowd. Okay, your CPI was above 9, so even that was a factor. And in general, for other companies, what you observed, like the CPI criteria, how important is that? Because some seniors told us that CPI is not at all that important. If you have your basics clear, you will get placed. Some senior used to tell that CPI is very important. What was So, your observation based on your experience? so CPI is not important is a myth. That is what I saw Okay, in the placement. okay. Pointer Hmm. does matter, and pointer matters very much. If you have a pointer more than 9, that's very good thing. Okay. 8.5 is also a good thing, but if you are above 9, so you'll be preferred in most of the companies, because what I observed, they don't see only your test, because what senior told us that you have to pointer doesn't matter, it should be only above 7, and what does Hmm. matter is the test. So you have to just clear the test, go to the interview, crack the interview. That is what they said. But I think they don't look only for the test, they also look as a combination of test with the pointer. If I take one example, I cleared Airbus exam and I was Yes, shortlisted yes. for the interview. But the thing is, it was a negative marking kind of a test. So if you do does a like wrong, if you answer wrongly, so you'll get a Mm. negative marking. And I forget that in the test. And in last 5 minutes, I just ticked randomly the questions which were Mm. left. I click and then I checked afterwards. So I all were wrong. So basically, I Mm. got negative marking for all of them. Also, Mm. my total questions were not those right compared to my friends, because we discussed after the test, na. So I was Mhm. getting around 67, 16, 17 out of 25, and my other friends were getting more than 20 out of 25. So I Mm. thought, okay, Airbus is gone. Mm. But when shortlisting came, so the fun fact was I was selected and those people were not selected. I think pointer was there, and also maybe resume was playing some factor over there. Okay. So not this is not only about the test; it is also Mhm. about your pointer and your MTP maybe. Okay. So Nice. can I So, highlight one thing in here? yeah, please. So I think 5 things are matter to crack any of the test and exam. So Yeah. one is pointer that Mhm. that should have.
other is resume and SOP, because we never took SOP seriously. Maybe Mhm. with you also and with me also. We Yeah. were like, when deadline came, like we were writing our SOPs. But Yes. one of our few friends of us, like they were preparing the SOP down the line from 2 months, and Yeah. then they selected in certain company based on the SOPs. Resume and SOP are important. Then MTP, because every company asks first question, what is your MTP? So Yes. your MTP should be properly selected, and you should do some proper work related to that company. If your MTP matches with the company, that's it. That makes you, Yeah. that will help you more. And other is coding test preparation and APT preparation. So these are, I think, 5 things you should focus on. Yeah. Right. So even as you mentioned that this CPI thing, you were shortlisted for Airbus, even with moderate performance in the test. We also experienced this in our high lab test. Like Yes, yes. we even discussed after our test that we could do only like हमने सिर्फ एक दो क्वेश्चंस थे तो हमने एक पूरा किया था एंड दूसरा आधा ही किया था, आधा किया था. लेकिन दूसरे लाइक इलेक्ट्रिकल के बच्चे जिन्होंने दोनों क्वेश्चंस किए थे सेम प्रोफाइल के लिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका पॉइंटर कम था लाइक. लेकिन हम हो गए थे क्योंकि शायद से पॉइंटर 9 के ऊपर था हमारा. When other students were really struggling to get shortlisted in at least one companies, you managed to get shortlisted in ample number of companies. Like you had ample number of interviews in your hand, like Honeywell, Blackwich, Yes. Honda, Siemens, Airbus, High Labs, ANZ for analyst. So how did you prepare? Like you also mentioned, like for apti and coding, how did you prepare these two things parallelly? Okay. Uh, So Before you get started, one more thing I wanted to tell to our audience or viewers that Aniket didn't do 10 plus 2, he did 10 plus 3, like he did diploma. And I know him from very first day of our college. In first semester, he used to be a little underconfident about his mathematical skills or aptitude skills because he knew that he was a bit weak in that. But towards the end of placement, like when we were approaching our test, I could see that he was at par with us during the test, during the aptitude test, because he he exactly knew where he was lacking. He exactly knew that he was not good in mathematics and he had to compete with BTech student. Forget mechanical student or MTech students. He had to compete with JEE students, BTech students of IIT Bombay, that is brightest minds of the country. So he worked very hard for 2 to 3 months on his points where he lacks, which is something everyone should note. Like notice your weak points and work hard for 2 to 3 months at least before your test gets started. So, Aniket, please elaborate how you did. How could you do that? yes, so like that was right. I was struggling with APT. So at the start, I only focused on APT most of the time, and my target was to complete one chapter a day of Arun Sharma. Arun Sharma, I think, is a good book which was referred by most of the seniors and most of the colleagues as well. So I referred Arun Sharma, and my target was to complete one chapter. And most of the seniors and colleagues told like only easy kind of a questions asked in the exam, not the medium and the hard one. So my target was, so there are 50 questions under the every chapter. So my target was to complete one every alternate question. So if I'm like answering question 1, then I'll not answer question 2 because those will be same. So I'll answer question 3, 5, Okay. 7 likewise. And when I Okay. revising it, then I'll go to focus on 2, 4 likewise. And it should be time based because in the test speed Mhm. matters. So Okay. you have to also focus on the time, and you have to like, so everyone crack the gate, so they know you have to create one note and you have to keep referring that. So likewise, and I was pretty weak in hand calculation, so that is Okay. where I struggled more. Yeah. So Arun Sharma, I think it has levels, right? Level one, Yes, level two. You completed each day. You completed one level, or one you chapter, completed one one chapter, chapter, both levels, no, only easy level. only easy level. And I for never how go much time to it? medium. Yeah. How much time it took for you to complete all the chapters? I know level one, Level one, like I two think, months, maybe. yes, 1.5 month. 1.5 month daily. You used to do this.
Okay, and that's then the after they have to start revising it, because that is only first completion, and then have to revise okay. it. And one Okay. thing I observed was, while going to any test, you should speak with your senior. So I know you crack, you are selected in ExxonMobil, but just to give an example of ExxonMobil, I Mm, was blank how to prepare for ExxonMobil. Then I called one of my senior, Sudhir, mm, and he remembered like what questions were asked at his time, and okay. I wrote those points and I specifically prepared for them. He said like forward derivative पूछेंगे, backward पूछेंगे. Mm-hmm. So I just went and Exactly. I read that, and exactly those questions will be sent. So then I observed that ki, like, call your seniors, get Mm-hmm. exact the question pattern. That's not guaranteed that it will be there, but there are Yeah. some chances कि वो repeat हो जाएगा. तो वही फिर मैं क्या करता था, उनको call करो. That's the easiest Mm, way. And specifically, rather than hard working, you should start smart working. yeah. Exactly. Then coming to this, after your preparation, we have pariksha test. How seriously you took those pariksha test and how you utilized that resource, we can say. Yes. तो परीक्षा आई थिंक सबको पता नहीं होगा, तो हाँ, मे बी एक बार आप इलेबोरेट कर दोगे उस पे तो बेटर रहेगा. लाइक प्लेसमेंट सेल बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट करती है इंस्टीट्यूट लेवल पे, लाइक इंस्टीट्यूट कोडिंग टेस्ट, इंस्टीट्यूट नॉट ऑल द टेस्ट, लाइक it is up to department placement coordinator to take core exams for their students, but institute level test happens for aptitude and coding tests. For before those tests and even throughout our tenure, like when we are preparing for our placements, we are given the access to this pariksha website. Portal. This is a website which prepare question banks for various state government or central government exams. They also have this aptitude module, which IIT Bombay placement team buys and gives that access to the students. Every week or every 10 days, they float an exam, they float a test for IIT Bombay students. When we give those tests, they also give stats that uh, you stand here. These many students gave this test. You stand here. That gives exact picture of where we stand in our placement, because those are the students whom we have to compete during the actual placement test as well. So in short, pariksha is an aptitude test which helps a lot. Like more or less exact type of questions come in our real placement test, like company test. How did you utilize that resource? If there are two ways, one can give the test, see his marks and start doing his own work, like he can again start doing Arun Sharma. Another way is he can give the test, analyze the result, go through each of the question, note down the concepts which he feel he could have done better, or it that was an easy concept which I should have remembered. Note those all things, and before a company test or before next pariksha test, we should uh, go through all that. Like, what pattern did you follow? How did हाँ. you utilize that? तो बेसिकली शुरुआत में मैं भूल गया था कि कोई परीक्षा टेस्ट भी देनी है. तो Mhm, जब बाकी लोग देने लगे, क्योंकि मैं वीक था, मैं तैयारी कर रहा था अरुण शर्मा के साथ, फिर mhm, मैंने परीक्षा टेस्ट देना चालू किया एवरी अल्टरनेट डेज पे. mhm, और इसमें वही होता है कि आपको वो एनालिसिस देता है एट द एंड कि आप क्राउड में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या परसेंटाइल है आपका, आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कितने टाइम दिया. और आप जब से 2-3 टेस्ट देते हो ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि ये चैप्टर्स मेरे लिए इजी जा रहे हैं और ये चैप्टर मुश्किल जा रहे हैं. तो वो mhm, चैप्टर्स के लिए फिर मैं वो क्वेश्चन गूगल करता था और इन जनरल वेबसाइट्स पे सर्च करके उसके क्वेश्चंस रैंडमली सॉल्व करने का ट्राई करता था. और परीक्षा भी ऑप्शन देता है कि अगर आप mhm, लेट से टाइम एंड स्पीड में वीक हो, तो आप उसकी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो. और फन फैक्ट है कि परीक्षा के बहुत से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं जैसे कि तैसे हमारे टेस्ट में. mhm. मतलब मे बी क्वेश्चन सेम नहीं, बट सेम कंसेप्ट है और सेम वे से सॉल्व किया जा सकता है. तो ठीक. परीक्षा इज अ गुड प्लेटफॉर्म जो हर 2-3 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट कराता है. हम्म, ठीक है. तो ये तेरे साथ हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जब सीनियर से बात कर रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किसी ने मुझे एप्टी का इम्पोर्टेंस उतना नहीं बताया था. कोडिंग का बता रहे थे, इंटरव्यूज का बता रहे थे, लेकिन एप्टी का मुझे उतना किसी ने बताया नहीं. दे वर मोर लाइक हो जाता है, तुमने गेट एप्टीट्यूड होता निकाला, है. हाँ हो जाता है, दे वर लाइक दैट. लेकिन 80% ऑफ मैकेनिकल के टेस्ट नहीं निकल रहे थे. सो उसका तुझे क्या लगता कारण है है कि एप्टीट्यूड?
उसका कारण है कि हम बीटेक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम जो एप्टीट्यूड दे के आए थे वो गेट वाला था, वो एमटेक वालों के बीच में रह रहा है। यहाँ पे हम बीटेक वालों से कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो कि जाने वाले एमबीए के लिए, मतलब वो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एग्जैक्टली। ईजी होता है। और हम हम्म इजी लेवल के ऊपर जा नहीं रहे हैं, वो हम्म मॉडरेट और हार्ड लेवल जाके करके मतलब कर रहे हैं। मेरे ओके। ऐसे कुछ कुछ दोस्त, जैसे हितार था, एक दोस्त है जो हम्म लाइक काफी प्रिपेयर कर चुका था, तो मीडियम और हार्ड लेवल के कर रहा था। हम्म बस वही था कि स्पेसिफिक ये भर रहा था, कंपनीज भर रहा था, इसलिए उसका ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रहा था, बट वो ज्यादा एडवांस था उस मामलों में। ओके। क्योंकि कोडिंग टेस्ट में भी एप्टीट्यूड आता है, मतलब हम्म ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोडिंग टेस्ट करते रहोगे तो सॉल्व होते जाएगा, नहीं। हम्म कोडिंग टेस्ट में सर्टन पार्ट ऑफ द चीज एप्टीट्यूड आएगा, और वो आपको तो खुद से ही करना होता है। ठीक है। सो अवॉइड नहीं करना चाहिए, सबने एप्टीट्यूड करना चाहिए। करना चाहिए। आप आप कोर के लिए जा रहे हो कि आप एनालिस्ट के जा रहे हो, किसके लिए भी जा रहे हो? ठीक है। देन कोडिंग कोडिंग की कैसे प्रिपरेशन करी तुमने? हाँ, तो कोडिंग के लिए क्या हुआ था, पहले तो मुझे पाइथन अच्छे से आता था, तो मुझे लगा कि हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे। बट जैसे टाइम, और पता नहीं था कि इतने जल्दी करना चाहिए था। कुछ कुछ लोग थे जो काफी पहले से कर रहे थे, और हमने बहुत लेट लेट चालू किया, कंसिडरिंग यू एज वेल। और पहले पता नहीं था कि कौन से पोर्टल्स और ये सब रेफर करना चाहिए, तो हम शायद से इंटरव्यू बेस पे चालू किया, और फिर हम गिग्स और गिग्स ट्राई कर रहे थे। बट वो थोड़ा कंफर्टेबल, तो मेरे ख्याल से हर एक का कंफर्ट जोन अलग होता है, कोई अलग अलग होता अलग है। वेबसाइट्स पे सेट होता है। हम्म, तो हम्म, मेरे हिसाब से पहले, जैसे आप क्या शुरुआत में वर्क थे, जैसे अभी एक साल हम्म, पहले आप सारे वेबसाइट्स को एक बार ब्राउज कर लो, और हम्म, देख लो कि कौन से फील्ड में आप ये होते कंफर्टेबल होते हैं। कोडिंग टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसे, क्योंकि वो एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज कैसे रखना और डेटा कैसे प्रोसेस करना, इसके ऊपर होता है। तो मैंने ट्राई किए सारे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद मैं गया और मैंने जाके यूडेमी में कोर्स खरीद लिया, 300 रुपए का। और वो शायद से बेस्ट था, क्योंकि वो क्या करता था, और मैंने सर्च किया था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन पाइथन, और यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेस आते, फिर भी वीडियो ओके। देखकर एक कोर्स खरीद लिया। हम्म और उसको मैं देखता था रोज, एक दो घंटे का वीडियोस देखता था, वो चैप्टर वाइज पढ़ाता था, और एज ए हम्म सीक्वेंशियली था, और कोड भी मतलब दिखाता था और एक्सप्लेन कर देता था, पहले ठीक है। थियोरेटिकल फिर प्रैक्टिकली। तो वो ठीक है। बेटर पढ़ता था। और उसके बाद मैं जाता था हैकर रैंक पे। हम्म तो वहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स है, हैकर रैंक और हैकर अर्थ। हम्म मुझे ऐसा फील हुआ कि हैकर अर्थ थोड़ा ज्यादा टफ है कंपेयर टू हैकर रैंक। और ठीक हैकर है। रैंक में वापस से आप उसी के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो शायद से आपको ग्राफ तक जाना चाहिए, ग्राफिक एंड पॉइंट डीएसए, और मतलब सॉरी डीएसए नहीं, डेप्थ फॉर सर्च, और डीएफएस और हम्म बीएफएस तक जाना चाहिए। ठीक है। और वहां तक अगर आप कर लोगे तो सॉल्व हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कोडिंग टेस्ट में आते हैं एरेस और स्ट्रिंग पे। भले आप बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कर लो, बट ये दो हम्म चीजें जो होती है ना, जो कि बेसिक होती है, क्योंकि उनको भी पता हम्म है कि कंप्यूटर छोड़ के बाकी के लोग आएंगे, तो हम्म बेसिक एप्टीट्यूड, एरे और स्ट्रिंग्स हम्म, पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो मैंने ठीक। ऑब्जर्व किया। तो ये प्रोफाइल वाइज वैरी कर रहा था, जहाँ तक मेरे को याद हाँ है हाँ। कि सॉफ्टवेयर अगर प्रोफाइल है, लाइक कोई भी प्रोफाइल मोर टुवर्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस आ ही रहते हैं, आएंगे, एटलीस्ट एक हाँ। क्वेश्चन ग्राफ का हो रहा था। लेकिन हम्म अगर वो एनालिस्ट का है या फिर मशीन लर्निंग का है, तो कोडिंग क्वेश्चन सिंपल हो रहे थे, हम्म स्ट्रिंग्स तक मैक्सिमम खत्म हो रहा था उनका लेवल। बट स्ट्रिंग में भी उनको ये यूज करना पड़ रहा था, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोई ना कोई। हाँ। और हम एज अ मैकेनिकल मोस्टली पाइथन प्रेफर करते हैं, बट पाइथन से एक मतलब, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तो सीबी आप सोच सकते हो। पाइथन इजी है, बट कुछ कुछ कंपनी के साथ पाइथन नहीं चलता है, क्योंकि वो कोडिंग ऑप्शन में पाइथन होता ही नहीं है। वो एक तो सी पूछते हैं या फिर जावा पूछते हैं, जैसे मैटलैब हो हम्म गया। और ऐसे कई बहुत सारे कंपनीज थे जिसके ऑप्शंस में ये नहीं था, मतलब पाइथन ऑप्शन ही नहीं था उनके लिए। बट हम्म वो गिनी चुनी कंपनी थी, और वो हाँ, बहुत लेती कम थी, तो कंपनीज हाँ, थी। उससे अगर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमको लगता है नहीं हो पाएगा सी प्लस प्लस अभी चालू करके, पाइथन इज नॉट हाँ, बैड। तो मैं वही देखता था, सीए तो मैं डायरेक्ट टेस्ट बंद कर देता था उसकी। राइट। टू पेज रेज्यूमे यूज किया था कि वन पेज रेज्यूमे यूज किया था इसके हाँ, लिए, साइमन तो के लिए? सब और इन जनरल सबने। कैसे तू बाइफरकेट करता था, लाइक कंपनी हाँ, वाइज कैसे डिसाइड करता था कि वन पेज यूज करूँ कि टू पेज यूज करूँ? एंड टू आवर ऑडियंस, वन पेज रेज्यूमे, टू पेज रेज्यूमे, तू ये एक्सप्लेन कर दे, ओके, तो रेज्यूमे का बेसिकली कैसे? हमें 5 रेज्यूमे बनाने होते हैं, मतलब मैक्सिमम 5 बनाने होते हैं, मिनिमम हम्म, 2 चल जाते हैं, है ना। तो रेज्यूमे के 2 टाइप होते हैं, 2 पेज रेज्यूमे और एक 1 पेज रेज्यूमे। 2 पेज रेज्यूमे में मतलब 2 पेज होता है अलट पलट के, और एक 1 पेज रेज्यूमे मतलब आपको सिर्फ वन साइड पेज के लिखना होता है, ठीक है।
तो 1 पेज में चैलेंज है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन 1 पेज में सबमिट नहीं होती है, और 2 पेज में आपके पास थोड़ी जगह हो ज्यादा होती है, तो आप प्रोजेक्ट ज्यादा एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये मेन फर्क है। और फिर जनरली बच्चे 5 टाइप क्यों है, क्योंकि आप अलग अलग कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से रेज्यूमे बना सकते हैं। क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो कि एमएल का है, तो वो कोई कोर वाली कंपनी, कोर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उनको उससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, तो हम उसको नहीं डालेंगे उस रेज्यूमे में। क्योंकि अगर मैंने कुल बनाए 20 प्रोजेक्ट किए मेरे एमटेक के स्पैन में, तो मैं डिवाइड करूंगा ना रेज्यूमे में, जिनको जो कंपनी के जैसे रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगेंगे उसके हिसाब से रेज्यूमे बनाऊंगा। तो मैक्सिमम आप 2 पेज के 2 रेज्यूमे बना सकते हो, और 1 पेज के 3 रेज्यूमे बना सकते हो। मुझे मेरे सीनियर से जो पता चला था कि मोस्टली 1 पेज ही चलता है, तो मैंने 1 पेज पे काफी मेहनत की थी। बट टू बी फ्रैंक, मैंने 1 पेज और क्या होता है कि 1 पेज रेज्यूमे काम आता है, बट डे 4 के बाद। तो मुझे लगता है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये कंपनी इसके जो टेस्ट होते हैं ना, वो पहले होते हैं। प्लेसमेंट्स के पहले टेस्ट हो जाते हैं महीने में, और आपके पहले 4 महीनों के जो कौन से आपको इंटरव्यू देने हैं ना, वो पता होता है। और 4 दिन के बाद उसी दिन आपको टेस्ट दे के इंटरव्यू देना होता है। तो मुझे जो 1 पेज रेज्यूमे है वो 4 दिन के बाद काम आएगा, लाइक वो बैकअप प्लान है तुम्हारा। और पहले 4 दिन के लिए मुझे लगता है कि 2 पेज के रेज्यूमे लगे थे, और 95% ऑफ द टाइम मैंने 2 पेज नॉन कोर रेज्यूमे दिया था, और 5% ही 2 पेज कोर रेज्यूमे दिया था। नॉन कोर मतलब यहाँ पे कंसीडर मत करना कि फाइनेंस या फिर कंसल्टेंसी, नहीं, नॉन कोर मतलब एमएल वाली प्रोफाइल्स, और कोर मतलब जो कोर मैकेनिकल के रिलेटेड कंपनी, ऐसे टाइप में। एक एक कोई तो कंपनी थी जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था, तूने ऑब्जर्व करके मुझे बताया था कि जिसने 1 पेज रेज्यूमे डाला उसका सिलेक्शन हुआ है, 2 पेज रेज्यूमे डाला था सिलेक्शन। एक्सिस बैंक थी वो। एक्सिस बैंक थी। एक्सिस बैंक थी तो वो, उसका फाइनेंस प्रोफाइल वाली क्या था थी। वो? उसका फाइनेंस। एनालिटिक्स था, वो एक ही था जो, नहीं, एनालिटिक्स काइंड ऑफ था, बट वो एक ही कंपनी थी जिन्होंने शायद से 1 पेज वालों का ही देखा और 2 पेज वालों का देखा ही नहीं। ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता है, बट जितना हमने जिनसे जिनका सिलेक्शन हुआ था उनसे बात की, उससे पता चला। बट वो एक ही कंपनी थी। तो शायद से अप्लाई करने से पहले उस कंपनी में जो सीनियर है उनसे बात कर लेना कि आपने कौन सा यूज किया, 1 पेज यूज किया, 2 पेज यूज किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए हमें क्या। और जितना ऑब्जर्व हुआ कि कोर वाले लोग भी अभी थोड़ा एमएल की तरफ टिल्ट हो रहे थे। मतलब जैसे कोई भी कोर कंपनी ले लो आप, तो उनको भी चाहिए कि अगर आपको एनालिटिक्स आता है तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। वहाँ पे जाप में लिखते भी थे कि यू विल गेट अ ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। तो मैं कोर कंपनीज को भी नॉन कोर वाले ही रिज्यूमे सबमिट कर रहा था कि उस वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट तो कॉमन ही होते हैं। ओके, नाइस, ठीक है। अभी तक के जर्नी में आपको कोई डाउट है, जो भी आप पे जूनियर्स बैठे हुए हैं? Like now we will talk about his interview. He was placed on day 1. So what all interviews he gave and how was his experience with each of that company? We will talk about that. तब तक कुछ doubts है अब तक के preparation में? Yes. Hi, this is Abhishek. So I wanted to ask that I'll be going for placements in coming December. So when is the right time to start coding and FT preparation? दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि हम गलती वही कर चुके थे कि हमने अभी आपका ये है ना, मे बी लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा ना, हमने लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था। मतलब अभी 2 सेम बचे हैं, ये सेम और अगला सेम, और अगले सेम के एंड में आप प्लेसमेंट दोगे, सही है? Yes. तो हमने वही गलती की थी कि ये सेमेस्टर खत्म होने की राह देखी थी, और फिर बस 6 महीने बचे थे और हम प्रिपरेशन चालू कर देते। 6 भी नहीं, थोड़ा कम ही थे, 4-5 पे हमने चालू किया था, तो काफी प्रेशर आ जाता है। बट वही था कि जो अभी चालू करेगा ना दिसंबर में, फ्रैंकली दिसंबर में स्टार्ट करना चाहिए। इट्स फेब्रुअरी ना, तो जो दिसंबर में स्टार्ट करता है वो एडेड एडवांटेज रखता है, ये पक्के से। क्योंकि देखो, हमें इन जनरल दिमाग में होता है कि आवर प्लेसमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी प्लेसमेंट अक्टूबर में शुरू हो जाती है। जैसी कंपनी के टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे ना, यू विल डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ। लाइक टेस्ट दो, एमटीपी करो, खाना खाओ, टेस्ट दो, एमटीपी करो, खाना खाओ। इवन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं होता। टेस्ट में क्या गलती की वो देखने का भी उतना टाइम नहीं होता। लाइक सब कुछ रैपिड हो जाता है। तो अपने दिमाग में रखो कि तुम्हारा प्लेसमेंट अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है, तो तब तक कंप्लीट करना है। वही गलती थी, हम सोच रहे थे कि दिसंबर में वक्त है, बट मुद्दा है कि अक्टूबर में आपको टेस्ट देना है, जो टेस्ट से पता चलेगा कि आप इंटरव्यू दिसंबर में दोगे या नहीं। मतलब अक्टूबर में ही आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस देना है, और अक्टूबर के साथ अगर अभी आप टाइम करोगे तो आपके पास अभी 4-5 महीने बचे, है ना?
तो ये 4-5 महीने वहां पे यूटिलाइज करना। टेस्ट देते हो, आप प्रिपेयर करते हो ना, तो नहीं होता है, टू बी फ्रैंक। So और संडेज वगैरह तो मिलते ही नहीं है। संडेज में कभी कभी 4-4, 5-5 टेस्ट देने होते थे दिन में। तो आप, और ऐसा होता है कि एक एप्टी है, एक कोर का देना है, एक कोडिंग का देना है, तो क्या प्रिपेयर करोगे आप उस दिन? कुछ नहीं करोगे। right, और right. वो मंथन कुछ क्वेश्चन? I have another question. This is this is a specific question. Like I'm from thermal background, so I have to take 5 core courses. So if I want to prepare for ML or software profile, how should I proceed at this stage? Suppose I have now only 10 months. So ओके, सो आपके कितने कोर्सेस, मतलब आपके टी आप आ रहे हो या टीए हो? I'm RA. आ रहे हैं ना, तो आपके कुछ सब्जेक्ट बचे हैं या फिर ये आपका 4th सेमेस्टर होगा ना? Yeah, I have completed 10 out of 11 courses. ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम पे ऑनलाइन मोड पे अभी फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी सब मतलब मैं पहले आपके बारे में बात करता हूँ, फिर एक इन जनरल बात करते हैं प्रेम, है ना, Yeah, क्योंकि right. आगे हाँ। वाले बैचेस के लिए, है ना। Okay. Right. तो मे बी इस टाइम पे आपने मैं बना चुका हूँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। आपको शायद से पहले डेटा साइंस का कोर्स करना होगा ना, तो सबसे मैं प्रेफर्ड बोलूंगा आप वो प्रोफेसर खापरा, मितेश एम खापरा का ये कर लेना, ऑनलाइन है, IITM का है, तो वो प्रेफर्ड लगा मुझे, क्योंकि लोग सब NPTEL का है क्या? क्या ये NPTEL NPTEL पे पे नहीं, इनका? नहीं नहीं इस पे? नहीं, ये गुवी है, GUVI.in। नाइस। अच्छा, ओके okay. ओके, ये पेड होता है कि कैसे? हाँ, ये पेड है। तो मुझे Okay. लगता है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना इज वर्थ, क्योंकि या देखो या आप कहीं पे वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे वेस्ट नहीं करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, खुद पे जिससे कि इन्वेस्ट आपको, हाँ, यहाँ पे फायदा होगा। ये प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पर्सनल खुद का मैं अनुभव बता रहा हूँ। और बेसिक से मैथ, और उनको पता है कि इतना मैथ्स नहीं लोग झेलते, और वो मैथमेटिकली नहीं पढ़ाते, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। मेजोरिटी ऑफ जगह पे क्या होता है, वो पीछे का ML के पीछे का मैथ्स पढ़ाता है, और आपको करना होता है अप्लाई। आप अभी वो एल्गोरिदम बन चुका है ना, आपको वो नहीं पता करना है कि एल्गोरिदम कैसे बनता है, आपको ये पता करना है कि एल्गोरिदम कैसे यूज करना है। तो वहां पे थोड़ा फंस जाते हैं, और इसकी वजह से बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो फंस जाते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे कि एल्गोरिदम कैसे बना है, मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करो, वो पूछेंगे कि इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे क्या होता है, तो वो होता है। और एनालिटिक्स विद्या करके एक वेबसाइट है, वहां पे एक बार आप सारे कोर्सेज खत्म कर लो, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, मतलब प्रिपेयर कर सकते हो, और ये इंटरव्यू में भी काम आएगा, और ये टेस्ट के लिए भी काम आएगा। एनालिटिक्स विद्या करके वेबसाइट है, वहां पे उस एल्गोरिदम का नाम डालना, लेट्स सपोज डिसीजन ट्री MCQs, तो हर एल्गोरिदम 30-40 MCQs आएंगे, वो आप पढ़ लेना। तकरीबन आप 300-400 MCQs पढ़ लोगे ना, तो उसका इंटरव्यू में भी फायदा हो जाएगा, आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, और टेस्ट में भी आ जाता है उसका फायदा। तो ये कई सारे टेस्ट में मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली कि एनालिटिक्स विद्या के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे थे। तो शायद से आप वो कर लो कूवी का, और एंड्रू एनजी का कोर्स है। यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर बस अगले वाले बैचेस के लिए, कि अब क्या हो रहा था पहले टाइम पे, मतलब डाउन द लाइन 2 इयर्स, हमारे सीनियर्स के सीनियर्स, उसमें अगर कोई लिख देता ना कि आई नो ML, तो कंपनी उसको प्रेफर कर रही थी, ठीक है। फिर हमारे सीनियर्स के वक्त ऐसा हुआ था कि ये डाल दो, कि आप कोर्सेज के डाल दो, फिर 1-2 कोर्सेरा के वगैरह, फिर प्रेफर कर रहे थे कि ठीक है एक लेवल बढ़ गया। अब हमारे वक्त ये होगा कि आपके MTP में ML है कि नहीं, वो देख रहे थे, कि मतलब आप और आगे, मतलब आप रियल प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं आप, क्योंकि क्या है, ये एंड्रू एनजी वाला जो कोर्स है ना, ये सबके रेज्यूमे में आएगा। मतलब आप कोई भी रेज्यूमे रैंडमली उठा लो, उसको बेसिक 3-4 कोर्सेज होंगे, वो सबके रेज्यूमे में मिलेंगे। तो उसका डीप लर्निंग का स्पेशलाइजेशन एंड्रू एनजी वाला, या फिर कोर्स ले लो, ये सब केस में मिलेंगे। तो आपको वापस से क्राउड से अलग दिखना है, तो अभी MTP में चाहिए, या फिर आपने सर्टन प्रोजेक्ट किए होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, कि यहाँ पे क्या हो गया, बाद में बच्चों ने डेस्परेटली बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट डाल दिए थे डीप लर्निंग के। तो क्या हो रहा था कि वो दिख जाता है कि आपने 1 महीने में इतना सब कैसे कर लिया, क्योंकि उसके आप रेज्यूम बनाते हो ना, तो आप पे आपको डेट भी डालनी होती है कि आपने कब से कब में किया। तो दिख जाता है कि भाई यही टाइम स्पैन में 3 महीने में इसने 4 प्रोजेक्ट कर लिए। तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इसने फॉर नेम से किए, बट एक्चुअल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप प्रोजेक्ट हल्के डालो, बट जेन्युइन डालो, तो वो काम करता है। मेरे रेज्यूमे में बस एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट था, बाकी सारे ML के बेसिक प्रोजेक्ट्स थे।
बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो देखते कि आपकी जेन्युइनिटी क्या है और आप कितना कॉन्सेप्ट को समझते हो, शायद उस पर ज्यादा फोकस जाता है। और सेम गोज विद प्रेम का भी इतना बहुत हाई फाई रेज्यूमे नहीं था, और हम मतलब एमएल पे ही फोकस था, और वो शायद से वर्क कर जाता है। हाँ, बस इसी क्वेश्चन पे और एक था कि हाँ बोलो। कि एमटीपी तो मेरा अभी पूरा कोर में है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इस केस में मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ कि कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स जिसमें ही प्रोजेक्ट भी वो लोग कवर कर रहा है हाँ इस टाइप में। तो बेसिकली ये जो कोर्स मैंने बताया ना, उसमें प्रोजेक्ट्स करवाते हैं वो। और दूसरा है कि आप ये ट्राई कर सकते हो, आईआईटी में अभी ये ले ले, सीट थ्रू कर लो कोई कोर्सेस, और उसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें तुम जनरली कोर्स प्रोजेक्ट हेल्प करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि वो कंपलसरी करवा लेते हैं ना तुमसे। और दूसरा है कि कोर्सेरा पे गाइडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट आई थिंक वो इतने खास नहीं होते। तो अगर तुमको प्रोजेक्ट करने हैं ना, तो थोड़ा यूडेमी पे जाओ। यूडेमी पे वो प्रोजेक्ट्स वाले कोर्सेस होते हैं। वो मतलब एक प्रोजेक्ट आपको डिफाइन करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा कोर्स फ्लो करता है। तो आई थिंक यूडेमी बेस्ट रहेगा उस केस में, ये टाइम पे। ओके ओके, थैंक यू। और जो मे बी जूनियर्स है, तो उन्होंने, उनके 5 सब्जेक्ट कोर होते हैं थर्मल के, तो उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद सेकंड सेमेस्टर में टिल्ट हो जाना चाहिए। अगर उनको एमएल डेटा स्ट्रक्चर करना है, तो सेकंड सेमेस्टर से उन्होंने टिल्ट होना चाहिए कोर कोर्सेज के लिए। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और वो वेरिएबिलिटी रख सकते हैं अपने इसमें, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है। अनिकेत, अभिषेक ने पूछा कि मेरा सब कुछ कोर में है तो मैं नॉन कोर के लिए कैसे अप्लाई करूं। हाँ सो वहां पे देख, हमने टेस्ट दिया, हमारा पॉइंटर देखा गया, हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, ठीक है। यहाँ तक के जर्नी, इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट होने तक के जर्नी में कहीं पे हमारे प्रोजेक्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। वो इंटरव्यू के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सिर्फ इंटरव्यू में। इंटरव्यू तो के लिए, ये जो जर्नी है, लाइक इंटरव्यू तक पहुंचने की जर्नी में अगर हम थोड़ा स्मार्ट खेल, लाइक टेस्ट में क्या पूछा जाता है, हाँ एप्टी पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, और एनालिटिक्स विद्या के क्वेश्चंस में जितना नॉलेज होता है उससे ज्यादा तो कोई नहीं पूछता। अगर इतना हम ऊपर 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 से पढ़ लिया और टेस्ट क्लियर करने तक का हमने नॉलेज ले लिया, तो इंटरव्यू में जाके हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। हाँ तो इसके बारे यस। में कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ, ये हुआ था मेरे खुद के इंटरव्यू में भी। वो टीएसएमसी के बाद जो बात करेंगे ना, तब इस पे बात करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, ठीक क्योंकि है। ये मेरे साथ ही हो चुका है जो तू बोल रहा है। ठीक है, मंथन। Yeah, thanks, Prem. And Aniket, obviously it was quite insightful till the talk. So I had one question regarding the mentality of preparation. See, like how when the placements approach, we start building a mentality of playing conservative. We start to have like preparation for both core as well as non-core. So how to balance that particular aspect of study and along with the MTP project preparations? Can you just shed some light over it? ओके, तो कोर और नॉन कोर को एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन है। और उसको एमटीपी के साथ कैसे बैलेंस करना है। या सही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एम्फेसिस करूंगा कि ट्राई करना एक पे फोकस करने का, दो पे फोकस मत करना। उससे क्या हो जाता है, आप ना घर के रहते हो ना घाट के रहते हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप कोर कर रहे हो, तो एक बंदा होता है जो दिन रात कोर कर रहा है ना, तो आप उससे कम्पीट कर रहे हो, है ना। या फिर एक नॉन कोर है जिसके साथ अपन मतलब वो कोडिंग कर रहा है, और आप बीच में से टाइम नहीं दे रहे हो इतना, और फिर उसके साथ कम्पीट कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर आप बहुत अर्ली स्टार्ट करते हो, जैसे अभी स्टार्ट कर दोगे, तो मे भी आप इक्वल टाइम दे दोगे, क्योंकि डेढ़ 2 महीना लगता है एफटी के लिए, 1.5-2 महीना लगता है कोडिंग के लिए। बट फिर बाद में होता है कि प्रैक्टिस आवर्स आपको बांटने पड़ेंगे, वही एक फंडा है। और शायद से एमटीपी के साथ इतना इशू किसी को नहीं आता है, क्योंकि एमटीपी में आपका गाइड आपको ड्राइव करते रहता है, और आपको क्या होता है कि टाइम का मुश्किल हो जाता है बस, क्योंकि आप 2-3 घंटा प्रोजेक्ट को दे सकते हो दिन का, और फिर 3-4 घंटे प्रिपरेशन के लिए। ये मुझे लगता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है बट कि जो दोनों में किया है मे बी, क्योंकि आरए वाले कर सकते हैं, टी वाले तो मुश्किल ही है। और दूसरा है कि मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्या करते हो, प्रिपरेशन के टाइम अकेले प्रिपेयर नहीं करते हो, आप दोस्तों के साथ प्रिपेयर करते हो ना, तो आप उनसे भी कांटेक्ट में होते हो। तो आप क्या करते हो, जैसे मैंने ट्राई किया बट बाद में छोड़ दिया।
मैं ट्राई कर रहा था कि बीच में मैं वो मेडिसी के नोट्स पढ़ रहा था मेरे गेट वाले, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर मैंने दिया, एक दिन दिया फ्लूइड मैकेनिक्स पे दिया पूरा दिन, और फिर क्या हुआ, मैं कोडिंग वाले से बात कर रहा हूँ तो वो अभी मुझसे 6-8 घंटा आगे चले गए ना, तो मुझे टेंशन आ रहा है कि अरे ये तो आगे जा रहा है और अब ये वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इसमें क्या हो रहा है फ्लूइड वाला, फिर मैं अगले दिन कोडिंग कर रहा हूँ, उस दिन फ्लूइड वाला आगे चले जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप ऐसे तो होंगे ना जो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, आप क्या हो रहा है कि वो 100% कर रहे हो तो आप 50-50 ही असाइन कर पाओगे, आप आपके पास भी उतना टाइम है, उसके पास भी उतना टाइम है। तो फिर एक टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया और फिर सिर्फ नॉन कोर पे फोकस करना चालू कर दिया। ये वाला होता है। अगर ऐसे स्टेट में भी अगर हम स्टेबल है, चलेगा, मुझे ये आगे निकल गया चलेगा, ये आगे निकल गया चलेगा, लेकिन जितनी मेरी प्रिपरेशन है पर्सनल लेवल पे दैट इज इनफ कि मैं टेस्ट निकाल पाऊँ, वो निकाल पाए उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं मेरे नॉलेज पे निकाल पाऊँ, इतना अगर तुम्हारा मेंटल कंडीशन है तो कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत मुश्किल है यार, वो टाइम पे जितना प्रेशर होता है, वो टाइम पे इतना मेंटल स्टेबिलिटी हम कितना भी सोच ले वो नहीं आता, हिम्मत हारने लगते हैं, जैसा निकेत ने बोला वैसे ही थॉट्स आते हैं। आप क्या भागते हो ना, मतलब आपको दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म टारगेट आप भाग रहे हो, शॉर्ट टर्म टारगेट आप भाग रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपको पता चल रहा है कि आप फंस रहे हो, कि क्या होता है कि आप टेस्ट उसी के साथ देने वाले हो जो 100% पे आप 50% पे हो, तो वो क्रैक करेगा, आप क्रैक नहीं करोगे, सिंपल है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर है आपका इन अ वे, तो वो फंडे में फंस सकते हैं। ठीक है, Okay, thanks Aniket, Prem, that was helpful. सोहम आपका डाउट कुछ? Hi Aniket. So I had this question about certifications in resume. So certifications का कितना importance है कि अगर resume में बहुत सारा काम दिख रहा है कि ML में किया है, data science में किया है, लेकिन certificates उसके नहीं है, तो उस पे क्या असर पड़ता है? क्या वो देखते हैं certificates इतना? तो अगर आपको रेज्यूमे में डालना है ना तो आपको सर्टिफिकेट्स लगते हैं, क्योंकि आपको है ना प्रूफ दिखाना होता है। आप जो भी एक वर्ड अगर रेज्यूमे में डालते हो ना तो आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ता है। अगर आप कोई कोर्स प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो वो मतलब उसका भी रिपोर्ट वगैरह दिखाना पड़ता है, या फिर आप कोई लैब में एमटीपी दिखा रहे हो तो आपको आपके कोर्स गाइड से भी अप्रूव कराना होता है, मतलब एमटीपी एडवाइजर से। तो फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे मैंने सर्टिफिकेशंस मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अगर गिटहब पे अगर मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, हाँ, और उसी के हिसाब से मैंने अगर रेज्यूमे में डाल दिए सब और वो वेरीफाई हो गए, तो अब रेज्यूमे में सारे प्रोजेक्ट्स है लेकिन सर्टिफिकेशंस कम है, तो चलता है। ओके। मैंने मेरे रेज्यूमे में सर्टिफिकेशन कैसे डाले थे बताता हूँ। मैंने बस 4 वर्ड मतलब डाले थे, एक कॉलम मतलब एक छोटा सा कॉलम डाला था ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, और कहाँ से किया वो भी डाला था। मैंने डाला था स्पेशलाइजेशन इन डीप लर्निंग कॉमा ब्लॉकचेन कॉमा बिग डेटा कॉमा, ऐसे बस कॉमा कॉमा करके डाल रहा था। मैं डाल भी नहीं रहा था कि मैंने वो स्पेशलाइजेशन कहाँ से किया है, क्या किया है, फर्क नहीं पड़ता। और शायद से वो इतना सा पार्ट था मेरे रेज्यूमे में तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन कोई भी कर सकता है ना। तो मैंने बोला ना, जैसे एंड्रयू एनजी का सर्टिफिकेशन अब हर एक के रेज्यूमे में दिखेगा, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू डाउन होने वाली है। क्राउड से अलग तो नहीं बना रहा ना तुमको, वो क्राउड से अलग तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाएगा और अलग चीजें बने। राइट, ओके, गॉट इट, थैंक यू। और एक बात बताओ कि जस्ट वो डिस्कस का वैसे पॉइंट नहीं है, बट ट्राई करना कि रेज्यूमे को थोड़ा सा अलग बनाना। मतलब ऐसा कोई इसके पीछे वैलिड प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मतलब ये क्या होता है कि साइकोलॉजी होती है अल्टीमेटली। तुम रेज्यूमे सबमिट करते हो और हर कंपनी को कम से कम 600 लोग अप्लाई करते हैं, कम से कम, ठीक है। तो 600 मतलब उसके बाद अगर 2 पेज के आधे आ गए और 1 पेज के आधे आ गए, तो 2 पेज के कितने रेज्यूमे हो गए? 300, और 1 पेज के 300, तो उसको कम से कम 900 पेजेस पढ़ने हैं इंटरव्यूअर को, है ना। तो 900 पेजेस में तुमको अलग बनना है बेसिकली, है ना। तो मैंने क्या किया था कि मेरे रेज्यूमे को बस एक अलग उसके माइंड पे बस एक कुछ हिंट डालने के लिए बैकग्राउंड, मैंने मेरे रेज्यूमे को कलर बनाया था। मतलब मैंने सब व्हाइट बैकग्राउंड पे बनाते थे, मैंने एक बैकग्राउंड यूज किया था मेरे रेज्यूमे में ब्लू डॉट्स के साथ। तो जिससे क्या हो रहा था कि मेरा रेज्यूमे थोड़ा कलरफुल और अलग लग रहा था। सबका व्हाइट व्हाइट था और मेरा ब्लू था, मतलब एक फेंट कलर था, बहुत ऐसा डार्क नहीं था, बट एक डाला था। जिससे क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड उसको अगर रिकॉल करना रहेगा तो उसको बस पता है कि हाँ वो ब्लू कलर का रेज्यूमे है, ऐसे कुछ, मतलब काइंड ऑफ ए साइकोलॉजिकल थिंग्स है। तो इस पे थोड़ा सा तुम फोकस कर सकते हो। और एसओपी में भी मैंने मेरे फोटो वगैरह डाले थे, उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कमिंग टू रेज्यूमे, लाइक तेरे रेज्यूमे में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्रोजेक्ट जो हेडिंग होता है, लाइक हम
एमटेक प्रोजेक्ट बोल के उसके नीचे 2 प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, लाइक एमटेक प्रोजेक्ट, एमटीपी एंड सेमिनार। तेरे टाइटल्स अलग थे, बिग डेटा प्रोजेक्ट्स समथिंग ऐसे टाइटल्स थे जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहे। मैं तो शेयर कर वो सकता हूँ अगर तुझे हाँ, चाहिए तो। नहीं नहीं, 2 मिनट के तू लिए बस बता दे कि तूने क्या सोच के ऐसा। हाँ, क्योंकि देखो वही है कि अगर रिक्रूटर तुम्हारा रेज्यूमे देख रहा है तो उसको पिन पॉइंटली पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने क्या किया था, MLR कंप्यूटर विजन करके एक हेडिंग डाला था और उसके अंडर प्रोजेक्ट डाले थे। फिर ऑटोमेशन और शायद ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री 4 4.0 प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसे टाइटल। प्रोजेक्ट डाल के कर दिए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि उसको पिन, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ML वाली प्रोफाइल खेलूं तो मुझे वही प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट है ना, तो उसे ढूंढना ना पड़े। तो वही है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही वो सब किए थे और उस पर भी ट्राई किया था। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि कोर्स प्रोजेक्ट, हम्म, फिर सेल्फ प्रोजेक्ट ऐसे बाइफरकेट करते हैं। इसने प्रोजेक्ट के क्या बोल सकते कैटेगरीज हैं, के हिसाब से। हाँ, प्रोजेक्ट्स के कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया था। वो एक अच्छा पॉइंट था इसके। देन और अभिषेक दूसरी और बात कुछ? ऑब्जर्व की थी बोल बोल। कि हम 3 लाइन में कभी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये एक मैंने ऑब्जर्व किया था। तो उसमें ट्राई करना कि कीवर्ड्स आए और एक बेसिक आइडिया पता चले, एक स्टोरी लाइन बने, रादर देन कि आप उसको बहुत टेक्निकल बना दो। मतलब वो एक ऑब्जर्व किया। तेरे इसमें तूने POR वगैरह के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हाँ, एक तो लाइन है तेरे, 2 लाइन है सिर्फ। ये एक तो अलग मिथ है कि सबको लगता है कि POR से बहुत फर्क पड़ेगा। ये एक मिथ है, हमको भी हमारे सीनियर्स ने वही बोला, हम भी ट्राई कर रहे थे कि भाई ये POR मिले, वो POR मिले। बट हम ठीक है। एमटेक वाले, ये POR फर्क पड़ता है, बट वहां फर्क पड़ता है कंसल्टेंसी वाली कंपनी में, और हम जाते हैं डेटा एनालिटिक्स और कोर वाली कंपनीज में। तो वहां पे उनको ठीक है। टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। उनको तुम किस ग्रुप के हेड हो और इससे फर्क नहीं पड़ता उनको कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको तू सॉल्व कैसे करेगा, ये वाला उनका अप्रोच होता है। तो POR हम जिस कंपनीज के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे कुछ मैटर नहीं करता, ऐसा मुझे लगा। तो बच्चों ने बड़े बड़े डाले थे और मैंने बाकी से भी बात की तो बाद में सब कन्विंस हो गए थे कि हाँ इतने डाले हमने POR, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन जस्ट यहाँ पे लोग बायस नहीं होना चाहिए बोल के यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एग्जाम के इंटरव्यू में मुझे मेरे POR के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ, लाइक तुमने इसमें क्या सीखा। तो हम ऐसे पूरा अवॉइड नहीं कर नल नहीं सकते कि करना है, उसका कोई बट इंपॉर्टेंस नहीं है। कम डालना है उसको। हाँ, वो जनरली HR राउंड में तुम्हारी पर्सनालिटी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन POR पे आ सकता है। ऐसा नहीं कि उसी के बेसिस पे सेलेक्ट होगा, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो POR होना चाहिए रेज्यूमे में, लेकिन एक छोटे एरिया में छोटा सा होना चाहिए कि बस आपको HR क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस POR को उठाकर उसको ये कर सको। और हाँ, और कोई क्वेश्चन है अभिषेक? तेरा हाथ रहे, सोम आपका भी हाथ रहे। हाँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा जनरल है। जैसे कि अब जो भी यहाँ पे एमटेक करने के लिए आते हैं वो पहले 4 साल अपना बीटेक, फिर 1 या 2 साल गेट का ये करके पूरा मैकेनिकल में करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आके अगर ML में या सॉफ्टवेयर में अगर स्विच करना है तो मतलब ये बस मुझ में ही नहीं, मेरे दोस्तों में भी मैंने देखा कि इनर्शिया या फिर थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई देता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप कुछ बता सकते हो कि मतलब कैसे किया एकदम से? तो इसका आंसर मैं दूंगा, ये इंटरेस्ट वाली बात है। ये मत देखना कि इसमें प्लेसमेंट है तो हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि जिसको कोर में भी मिलना था ना उसको कोर में मिला, ऐसा नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि प्रिपरेशन वीक था कोर के, मतलब ऐसा नहीं था कि जॉब ही नहीं था, ऐसा नहीं था, प्रिपरेशन वीक था ऐसा बोल सकते हैं। तो वही हम बात कर रहे थे कि एप्टीट्यूड में फोकस करो या फिर कोर के लिए फोकस करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरेस्ट की तरफ जाना, क्योंकि आप उधर जाके अगर फर्स्ट जाते हो ना, भले आप जॉब ले लोगे, लेकिन आप उधर भी क्योंकि आप कम्पीट करो ऐसे लोगों के साथ जो आपसे बहुत बेटर है, तो आप जॉब में आगे नहीं बढ़ोगे ना, ऐसा मेरा पर्सनल ख्याल है। तो ट्राई करना कि इंटरेस्ट को ही ड्राइव करो, क्योंकि तभी आप कर पाओगे। और अभी इस पॉइंट पे अगर शुरू कर दोगे कोडिंग तो तुमको समझ में भी आएगा कि इफ एट ऑल आई एम इंटरेस्टेड। सही है। ओके, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं डिजाइन से हूँ और मैं भी आ रहे हो, तो अभी तक तो मेरे डिजाइन के सारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी डिजाइन को ML के साथ लिंक कैसे करें, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग में
इंडस्ट्री 4.0 या जैसे टेक्नोलॉजीज है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जा रहे हैं, लेकिन डिजाइन के कोर में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जो डायरेक्टली एमएल के साथ या फिर आईओटी के साथ लिंक करे। तो नहीं, ये बहुत मतलब मैं इसको ऐसे बताऊंगा कि एमएल एक काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है और डिजाइन में सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चलता है। इसलिए जो हमारे भी जो बैचमेट्स थे आकाश और ये, तो वो काइंड ऑफ बहुत क्रैक कर रहे थे, भले उनको एमएल नहीं आ रहा था लेकिन वो एमएल के टेस्ट भी क्रैक कर रहे थे क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन आ रहे थे और तुम्हारे कोर्सेस में ऑप्टिमाइजेशन को काफी वेटेज है ना। और वो जो होते हैं ना कोर्सेस, जैसे इंटरव्यूज में वगैरह भी उस पर फोकस्ड होता है, तो वो ब्राउनी पॉइंट दे देगा तुमको एमएल अगर आता है, क्योंकि एमएल से आप लोग ऑप्टिमाइज करना चालू कर रहे हैं और डिजाइन में वही करते हैं ना। सबको पता है कि फोर्स यहाँ पे लगने के बाद ये ऐसे ऐसे होगा, मेन बात ये है कि ऑप्टिमाइज करना। ओके सुधीर बोल के हमारा एक सीनियर था, उसने एमएल लगा के फीचर एक्सट्रैक्शन के एल्गोरिथम्स लगाए थे कंप्यूटर विजन यूज करके। तो डिजाइन में भी काफी प्रोजेक्ट्स है जो तुम अभी प्योर मैथमेटिकल करते हो, अभी एल्गोरिथम ट्रेन करते हो कि ये चीज हमको डिजाइन करके दो। तो ऐसे है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से गूगल भी कर लोगे तो डिजाइन के ऊपर काफी सारे मिल जाएंगे आपको, ओके डायरेक्शन मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो अब डे 1 पे आते हैं। लाइक डे 1 पे कितने इंटरव्यूज थे? अगर एक बार मैं नाम ले लूं सारे तो चलेगा? हाँ बोलो। बेसिकली मेरे हुए थे 10 कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग। डे 1 के लिए हुआ था TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, होंडा जापान और एयरबस। ये 3 इंटरव्यू में दे चुका हूँ डे 1 के। फिर डे 2 पे था ब्लैक एंड विच, ठीक है, और ये कंसल्टेंसी फर्म है। और डे 3 के लिए था हाई लैब्स, ANZ बैंक, राकुटेन मोबाइल, सीमेंस, कोपा सॉफ्टवेयर और हनीवेल। तो ये डे 3 के लिए थे और शायद से डे 4 के लिए नहीं हुआ था मेरा कोई। और डे 1 पे अगर मैं पहले से स्टार्ट करूं, 3 इंटरव्यू दिए मैंने डे 1 के लिए, एयरबस, फिर होंडा जापान और तीसरा था TSMC। तो मैंने एयरबस की तो स्टोरी बता दी थी कि टेस्ट कैसे क्रैक हुआ था, पॉइंटर मेजर रोल प्ले कर चुका था वहां पे और मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। और एयरबस के लिए अब इंडिया में नई ब्रांच खुली है जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के लेआउट्स वगैरह ऑप्टिमाइजेशन पे, इसकी वजह से प्रेफर्ड था, शायद से मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफर कर रहे थे। और इंटरव्यू में एयरबस में मैंने ये गलती की तो मैं खुद को ओवर स्मार्ट दिखा। मतलब बेसिक्स ही पूछ रहे थे कि आपने ये कैसे किया, आपने वैसे ये कैसे किया। पहले उन्होंने प्रोजेक्ट पूछे मुझे मेरे जो रेज्यूमे में थे कि आप ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। तो आप जो भी रेज्यूमे में लिखते हो ना, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करना है वहां पे। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैं बहुत बातूं नहीं हूँ, मैं बहुत बात कर देता हूँ, है ना। लाइक वो भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्रेम को तो पता ही है। तो वो मैंने वहां पे गलती कर दी और मैं ज्यादा बात कर दिया। तो एक टर्म होती है इंटरव्यू हाईजैकिंग, जो मैंने बाद में सर्च की, जहाँ पे आप इंटरव्यू को हाईजैक कर देते हो, आप इंटरव्यूअर को डोमिनेट कर देते हो। तो वो टर्म मैंने वहां पे कर दी थी। तो शायद से यहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि 2 चीजें, एक तो बहुत फास्ट नहीं बोलना है, स्लो बोलना है। देखो ये सारी चीजें है जो पता नहीं बहुत पर्सनल लेवल पे मुझे पता चली कि स्लो बात करना और रिपीट करना है कि हियर आई एम टू एक्सप्लेन, ये वैसे बात करना है रादर देन हियर आई एम टू एक्सप्लेन। तो क्या है, सामने वाले को समझता नहीं है, क्योंकि मे बी उसका एसेंट अलग है और उसको वो समझता नहीं है, ठीक है। और आप बहुत एक्सप्लेन मत कर देना प्रोजेक्ट को, एक लिमिटेड वे रखना और प्रोजेक्ट के पीछे एक स्टोरी लाइन बनाना। क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लग जाते हो और आप डायरेक्ट टेक्निकलिटी में उतर जाते हो ना कि मैंने ये एल्गोरिदम यूज किया और उससे ये होने लगा, तो सामने वाले को नहीं समझ में आता। उसके लिए आपको ये बताना पड़ता है कि ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक बेसिक 2-3 मतलब एक 4-5 लाइन की स्टोरी लाइन होनी चाहिए और फिर आप टेक्निकलिटी में जाओ और लिमिटेड ही बात करो, जितना वो पूछे उतना बात करो, रादर देन उसको बहुत कुछ बताने लग जाओ, तो वो मत करना। लाइक ये स्ट्रक्चर के साथ वो डिसाइड करता था, पहले प्रेजेंट प्रॉब्लम, प्रेजेंट सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट सॉल्यूशन, फिर तेरा सॉल्यूशन, ऐसा तूने कुछ प्रिपेयर करा था। तो एक एग्जांपल में दूं इस पे तो चलेगा? ठीक है। हाँ। तो ऐसा था कि एक मैंने ML का प्रोजेक्ट किया था, कोर्स प्रोजेक्ट, जिसमें था कि ML एल्गोरिथम यूज करके हम शर्ट के स्लीव्स की फाइंड आउट करते थे कि उसने शर्ट फुल स्लीव्स है, हाफ स्लीव्स है या फिर 3/4 स्लीव्स है। ये प्रॉब्लम था। लेकिन अब मैं ये प्रॉब्लम बोलूंगा तो काफी मतलब सिंपल सा लगेगा और आप उस पर गेस करने लग जाओगे। तो इसको ऐसे नहीं बताना, इसको ऐसे बता सकते हो कि, क्योंकि आपको देखो क्या है कि
जितना मैंने ऑब्जर्व किया इंटरव्यू चलता है 20 से 30 मिनट। अगर 20 से 30 मिनट में आप 60-70% अच्छा बात करने लोगोगे ना, तो एक वापस बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में अच्छा ये मन में ये आ जाता है, टिक आ जाता है कि हाँ ये अच्छा बंदा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप इमेजिन करो आप ग्लोबस करके एक चेन चला रहे हो जिसके अलग अलग दुकानें हैं अलग अलग सिटीज में, और आपको ऐसा स्टॉक रखना है जो लोग खरीदे, है ना, क्योंकि आपको बेचने कपड़े। तो अभी चेन्नई में अलग फैशन चलेगा थोड़ा, मुंबई में थोड़ा अलग चलेगा, चेन्नई में भी अलग टाइप के थोड़े कपड़े प्रेफर कर रहे हैं, शर्ट्स में भी। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया जो कि उनके कपड़े एनालाइज करता है। मतलब जो कस्टमर आ रहा है, अगर वहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादा लाइनिंग वाले शर्ट है तो आप लाइनिंग वाले ज्यादा रखो ना, रादर देन चेक्स। फुल स्लीव मुंबई में ज्यादा हाफ स्लीव्स पहन रहे होंगे, बेंगलोर में फुल स्लीव्स पहन रहे होंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, आप स्टॉक कैसे कैटर करोगे? तो आप हमारा सिस्टम लगाइए जिससे कि वो बताएगा कि आपके कपड़े कस्टमर जो आ रहे हैं ना आपके शॉप में वो क्या लाइकिंग रखते हैं, और हिसाब से मतलब मे बी कलर का ये मतलब ज्यादा डार्क कलर प्रेफर कर, लाइट प्रेफर कर। उस वे में हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया जिसमें मेरा एल्गोरिथम बताता है कि कस्टमर का शर्ट का स्लीव्स फुल था, हाफ था या फिर 3/4 था, और हमने उसके लिए फिर ML एल्गोरिथम यूज किया और फिर KNN यूज किया, फिर ऐसे बताता। तो एक काइंड ऑफ एक स्टोरी लाइन थी, तो सामने को इंटरेस्ट आता है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड अगर आप बताते हो ना चीजें तो उसको ज्यादा परफेक्टली क्लिक करती है, ये मुझे ऑब्जर्व है। ओके, परफेक्ट। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया था। तो यहाँ पे एक बात होती है कि यहाँ पे ट्रिक ये है कि इंटरव्यू का टाइम होता है 20 से 30 मिनट। अगर आपकी स्टोरी ही काफी बड़ी हो जाएगी ना, तो आप 30 मिनट में 15 मिनट आपकी हर प्रोजेक्ट की स्टोरी मिलाकर 15 से 20 मिनट हो रहे हैं, तो फिर उसको भी कुछ सर्टेन क्वेश्चन पूछने होते हैं, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरव्यू हाईजैकिंग। तो वो नहीं करना है, तो स्टोरी बनाओ और प्रिसाइज बनाओ। ओके, अगला और इंटरव्यू। उसकी वजह से हाँ, तो उसमें क्या हो गया कि मैंने शुरुआत में थोड़ा ज्यादा बात कर लिया और फिर उसमें ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पूछने लग गया और फिर बेसिक के ऊपर मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। और अगला इंटरव्यू था होंडा जापान का। तो होंडा जापान में SOP देखते हैं, तो शायद से आप अलग से उसका जापानीज इंटरव्यू के लिए लेने वाले हो, है ना? हाँ, हम एक राउंड टेबल करेंगे जापानीज इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तब बता देंगे कि कैसे करना चाहिए कैसे SOP एंड करना नाउ। है। हाँ ठीक है, तो अभी उस पर बात नहीं करते। जापानीज इंटरव्यू में ये था कि वो स्पेसिफिक वो ट्राई कर रहे थे कि आप कल्चरल फिट कितना रखते हो, क्योंकि जापानीज लोगों का होता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज कम हो लेकिन आप कल्चरल फिट ज्यादा हो तो वो प्रेफर करते हैं। पर फिर भी वो बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे ML के, और उन्होंने वो 2 होमवर्क दिए थे जो आपको करके आने थे। मतलब आपको एक रोबोट बनाना था इन कोविड सिस्टम जो इंसानों के हेल्प में आए, मतलब काम में आए। तो मैंने बनाया था रोबोट जो वैक्सीनेशन करे, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी नया प्रॉब्लम आ रहा था कोविड की वजह से और उतने लोग नहीं है। तो मैंने ऐसा रोबोट डिजाइन किया था जो वैक्सीन करने में काम है। तो उसमें वो क्रॉस कर रहे थे, मतलब ग्रिल करने का ट्राई कर रहे थे कि ये रोबोट पे आप क्या AI लगाओगे, क्या एल्गोरिदम्स होंगे, और फिर एक प्रॉब्लम दे रहे थे कि उनका एक रोबोट है। तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे होंडा के, एक AI रिसर्चर और एक कंप्यूटर विजन। तो वो पूछ रहे थे कि हमारा ये रोबोट है तो इसमें AI कैसे लगेगा, ये एल्गोरिदम ही क्यों चूज किया। तो उसी पे क्वेश्चन बिल्ड कर रहे थे। और शायद से वहां पे मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ढूंढ रहे थे ऐसा बंदा जो ओवर द सीज 6 महीना इंटर्नशिप करके आया था, जो कि DD स्टूडेंट्स करके आता है। तो वहां पे मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि बाकी आपका अच्छा है बट हम ये भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो कल्चरल फिट में अच्छे से फिट होगा। तो 2 इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू तो अच्छा गया लेकिन ये लेने नहीं वाले क्योंकि मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बात है TSMC। बस TSMC पे ये प्रोफाइल था काइंड ऑफ बिग डेटा का। और जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे ना कि आपका उसमें एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप कन्विंस कैसे कर सकते हो इंटरव्यू में। तो पूरे जाफ में बस एक पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, जो मुझे आता था। मतलब होता ना कि जॉब रोल में देते हैं कि बिग डेटा आना चाहिए, C और जावा आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन आना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे। बाकी पॉइंट्स मुझे नहीं पता थे, ना मुझे C आता है, ना मुझे जावा आता है, ना मुझे बिग डेटा आता है। बस मुझे पता है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक पिच तैयार करना, क्योंकि हर इंटरव्यू स्टार्ट होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ से। और यहाँ पे एक ट्रिक होती है वो ब्रेड क्रम्स वाली। मतलब आप इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन ही ऐसे दो कि जो आप मतलब आपको आंसर देना है वही वो क्वेश्चन पूछते जाए। तो मैंने क्या किया, इंटरव्यू में मेरा MTP ओवर एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या किया, उनका फोकस सारा जो है मेरे MTP पे आ गया। और मेरे MTP में मेरे बात कर रहा था ऑटोमेशन और डिजिटल ट्विन पे, जो उनके जॉब से रिलेटेड था, और वहां पे मैं कनेक्ट कर पा रहा था। और यही पॉइंट था जो मैं फोकस कर पा रहा था, क्योंकि बाकी तो मुझे आता ही नहीं। तो वो आया कि हो दिस लुक्स इंटरेस्टिंग,
लेट्स गो ऑन दिस, और फिर वो उसी पे बात करने लगे। और एमटीपी तो मेरा है ना, तो मैं तो एमटीपी एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ अच्छे से। और फिर मैं उसी पे एक क्वेश्चन का आंसर देते देते मैं एक पॉइंट छोड़ जाता था जिसमें वो उसी पे क्वेश्चन करे कि देखिए सर मैंने इसमें डिजिटल ट्विन बनाया यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बोलते ओ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो क्या किया तुमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में? तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बोलता हूँ कि एंड में बोल देता हूँ मेंटेनेंस। तो बोलते हैं अच्छा मेंटेनेंस में क्या किया? तो आप ये एंड क्वेश्चन का आंसर देते हो ऐसे करो कि एक क्वेश्चन छोड़ जाए उसके लिए पूछने के लिए, इंटरव्यूअर के लिए, और आपका आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप एंड वक्त पे उसको आंसर दे सकते हो। तो वही है ना कि 20 मिनट्स का टाइम स्पैन है, अगर आप 15 मिनट से ज्यादा पॉजिटिव साइड रहते हो ना तो आप सिलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि वो भी उनको भी पता है कि 20 मिनट में सब जज नहीं कर सकते। तो वही होता है कि पूरे टाइम स्पैन में आप कितना टाइम पॉजिटिव रहते हो और कितना टाइम निगेटिव साइड में रहते हो। तो वो वाला फंडा था। तो बस मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन 2 शब्द पे ही मेरा पूरा इंटरव्यू चलाने दिया मैंने, और लास्ट में वो हो गए थे। ओके, मतलब खुद का इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ड्राइव करना चाहिए खुद ही डिसाइड करो। हाँ। तो ये सब तूने पहले लिख के रखा था कि या फिर सोच के रखा था कि मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा, ये डायरेक्शन? फिर एचआर क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछा था उन्होंने? हाँ, एचआर में ये होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो प्रेम ने अभी नोट डाउन किया। मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे थे एचआर की वजह से, क्योंकि टेक्निकली सब प्रूवन है, बट एचआर के 2 रैंडम क्वेश्चंस कर देंगे ना तो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे एक दोस्त है जिसका एयरबस में टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ, लेकिन उसको बस एक क्वेश्चन पूछा कि एयरबस के कस्टमर कौन है और एयरबस के राइवल कौन है, तो उसको नहीं पता था। तो आप उसी टाइम पे बाहर हो जाते हो। ठीक है, आपको बेसिक कंपनी का पढ़ के जाना होता है, बट वो बस इंटरव्यू का मैं बात कर रहा हूँ तो इंटरव्यू के पहले वाली चीज करने वाली काम, क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा पढ़ लेना। और वो क्या होता है कि आपको इंसिडेंट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बोला कि आपने इतना सब किया है तो आपको बहुत प्रेशर दे देंगे हम, तो आप कैसे काम करोगे? तो ये काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन है, तो आपको इसके आंसर प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैंने क्या किया था इसके लिए, सुधीर करके जो मेरा सीनियर है, सुधीर और योगेश, तो इन्होंने उनके वक्त काफी एचआर क्वेश्चन्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो जस्ट डे 1 से पहले 2 दिन पहले मतलब 27-28 को मैंने उनके साथ 3-3 घंटे के सिर्फ एचआर के क्वेश्चंस के इंटरव्यू किए थे, जो वो एक लंबी लिस्ट बना के आए थे 50-60 क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन इसको फेंकेंगे अपन। और ऑफकोर्स मुझे तब आंसर्स नहीं आ रहे थे, बट मुझे पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने काइंड ऑफ मन में एक आंसर्स बना के रखे थे कि व्हाई नॉट पीएचडी, व्हाई जॉब, ये क्वेश्चन हो सकता है। तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है या किसी के साथ, अगर हो चुका है तो एक्सप्लेन करना, या फिर पीओआर वाला क्वेश्चन, टीममेट वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे ना कि अगर तुम डिप्रेस होते हो तो कैसे हैंडल करते हो, स्ट्रेंथ बताओ, पास्ट स्ट्रेंथ बताओ तो हम सोचने लग जाते हैं, या फिर वीकनेसेस बताओ। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना ही बेटर है इंटरव्यू के पहले, क्योंकि आप उसका फैब्रिकेटेड आंसर देते हो ना तो बेस्ट रहता है, क्योंकि आप सच इन वक्त पे बोलने जाते हो तो वो मतलब ऐसा है ना, डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं दे पाते वहां पर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे ये कर रहे थे कि आप एचआर क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड नहीं थे, मोस्ट ऑफ द बच्चों को, ये मुझे ऑब्जर्व हुआ। ओके, सो अगर इन केस हमने प्रिपेयर किया, हमारे हिसाब से हमने इंटरनेट पे जितने क्वेश्चंस मिल रहे थे उतने क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आउट ऑफ द बॉक्स अबाउट एचआर, लेट्स से आज तक के लाइफ में क्या इनिशिएटिव लिया तुमने, ये मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था और ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइम पे कैसे डील करना चाहिए तेरे हिसाब से? तो उस टाइम पे सबसे पहले है ना, जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, क्वेश्चन पूछते आंसर देने के लिए रश नहीं करना चाहिए, जो मैं करता था। मतलब जैसे अभी इसने क्वेश्चन पूछा ना तो मैं तुरंत आंसर देने लगता हूँ, और फिर मैं कुछ आंसर देता हूँ और फिर उसको कवर अप करने के लिए मैं पाइल अप करने लग जाता हूँ। तो आप टाइम ले सकते हो, 3-4 सेकंड से ज्यादा टाइम ले सकते हो, मतलब 5-1 सेकंड तक टाइम ले सकते हो। ऐसा थोड़ा आवाज करके आप सोच रहे हो ऐसे दिखाकर, फिर आप थोड़ा, क्योंकि आपके लाइफ में ना इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, उसको पॉजिटिवली वे रखना होता है। तो वही है कि इसकी भी प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि आप रैंडम क्वेश्चंस को कैसे आंसर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे लिए नया था। जैसे उसने पूछा था कि हम आपको बहुत प्रेशराइज करेंगे और फिर आप ऐसे प्रेशर मूवमेंट्स को कैसे हैंडल करोगे, तो ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर नहीं किया था और उसने एन वक्त पे टीएसएम से मैं पूछ लिया। तो अब मेरे मन में भी आंसर नहीं था, तो मैंने बोला कि बट कि मैं हंसते हुए इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि मैंने वो एक बनाया था कि इंटरव्यू में आप सीरियस नहीं होगे, क्योंकि वो भी एक चीज था जो शायद कम्युनिकेशन में हम सीखे थे कि आपको हंसते हुए ही बात करना है। तो कुछ भी कितना भी क्वेश्चन पूछा मैं ऐसे ऐसे करके हंस हंस के आंसर दे रहा था। तो मैंने बोला हाँ इसी को फेंक देते हैं। मैंने बोला कि सर आपने ऑब्जर्व किया ना मैं कंटिन्यूअसली हंस रहा हूँ, तो ह्यूमर हेल्प्स मी टू हैंडल द प्रेशर।
तो वो भी बोला कि हाँ हाँ कन्विंसिंग है कि हाँ ये तो हंस की बात कर रहा था अभी तक, तो ठीक है, ऐसे टाइप में। ठीक है। सो अगर ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टाइम लो, टाइम लेना। खुद से ट्रू रहो, और जेन्युइनली तुमको क्या लगता है, तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, ऐसा आंसर दे दो उस टाइम पे। अभी जैसे इसने बोला मैं हंस रहा था, तो इसने खुद का एक पॉइंट ऑब्जर्व किया, खुद के साथ जेन्युइन रहा और एक जेन्युइन आंसर दिया। अगर हम जेन्युइन रहे तो आगे वाला इंप्रेस होता ही है। हाँ, ठीक है। और हंस के इंटरव्यू देना एक मेरे को लगा कि अच्छी स्ट्रैटेजी, जिससे क्या होता है कि आप हंसते हो, वो हंसता है, एक लाइट माहौल हो जाता है, ओके, मतलब स्माइल रख के बेसिक। ओके, नाइस। इंटरव्यूअर पे भी काफी डिपेंड रहता है कि वो हमें कितना कंफर्टेबल कर रहे हैं। ओके, इतना टेक्निकल में डिजिटल ट्विन पे वगैरह पूछा इन डेप्थ, और एचआर में यही क्वेश्चन था कि अगर प्रेशराइज सिचुएशन रहा तो तुम कैसे हैंडल करोगे, इसके अलावा कुछ? और हाँ, होंडा में काफी सारे पूछे गए थे। होंडा क्योंकि वो नहीं, एचआर में ये पूछे थे कि टीम कितनी है, टीम में कैसे काम होता है, आप कैसे चीजें बांटते हो, ये टीएसएमसी में भी पूछा गया था। और सेम चीज होंडा में भी पूछी गई थी। होंडा में भी पूछ रहे थे कि ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें आपका बॉस है ना, आपको कोई काम ही नहीं दे रहा है, आप बस बैठे, मतलब वो बैठा आके बैठता है और आप अपनी जगह पे बैठे हो और आप ज्वाइन कर चुके हो और आपको आके काम ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो इस केस में? तो ये भी काफी नया क्वेश्चन था, ये तो मुझे भी नहीं था, तो वापस से मैंने टाइम लिया और आपको तो बना के ही देना इसका आंसर एंड वक्त पे। तो फिर अब मैंने बोला कि जाके काम मांगूंगा तो अजीब लगेगा कि काम दे दो, ऐसा बोलूंगा तो वो बोलेगा ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन। तो मैं बोला कि नहीं, मैं मेरे टीममेट्स को ऑब्जर्व करूंगा कि कौन क्या कर रहा है, और फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं कहीं फिट इन होता है क्या, और फिर मैं जाके एक सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन मेरे बॉस को दूंगा कि ऐसे ऐसे काम मेरे टीममेट्स कर रहे हैं, तो मैं किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ क्या, या फिर अगर मैं ये रिसर्च कर चुका हूँ तो यहाँ पे थोड़ी बैक, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स दिख रहे, तो मैं इसको कवर अप करने का ट्राई कर सकता हूँ। तो ये मैंने आंसर दिया था। तो बट आपको सोचना होता है इन वक्त पे 5 सेकंड का गैप लेकर। ओके, नाइस। बस डे 1 ही था, अगले दिन सुबह तो सेलेक्ट हो चुका था तो अगले दिन का कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे बस पॉइंट ये करूंगा कि एक छोटी स्टोरी लाइन बनाओ ताकि आपका आंसर बोरिंग ना लगे, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आपको पता होता है, सामने वाले को नहीं पता होता है, और 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन नहीं होता है प्रोजेक्ट। तो स्टोरी लाइन से स्टार्ट करो, शॉर्ट टेक्निकल बोलो, और जब वो क्वेश्चन करे ना टेक्निकल, तो टेक्निकल से आंसर दो, रादर देन खुद से टेक्निकल बता देना। ये एक ऑब्जर्वेशन था। हंस के बात करो और एचआर की प्रिपरेशन करो, कॉल करो किसी को और बोलो कि मुझे क्वेश्चन पूछे और मुझे करेक्ट करते रहे। आप जितने पहले मॉक इंटरव्यूज दोगे ना, उतना बेटर है। ओके, सो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो ऐसे लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करो, अगर वो टेक्निकल में जाते हैं तो ही तुम टेक्निकल के बारे में बात करो, उसके अलावा एचआर। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं होता है ज्यादा, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ ये काम करने, अपन नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जंप करते, तो वो जंप कर पाएगा ना। आप उसको टेक्निकल में फंसा दिए तो अब उसको भी पूछना पड़ेगा, और आप दोनों वहां पे फंस जाते हो, उसको भी पता नहीं चल रहा वो क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग जस्ट फॉर सेक ऑफ आस्किंग, और आप आंसर दे रहे हो, तो वो मैच नहीं बनेगा फिर। एंड एचआर के वक्त अपने सीनियर से या अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर लेना। नाइस। इंटरव्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? हाँ, एक सेकंड। इंटरव्यूअर जो था तेरा, वो कैसा लैंग्वेज यूज कर रहा था? इंडियन थे, कहाँ के थे? हाँ, तो तीनों इंटरव्यू में अलग अलग थे। तो पहले इंटरव्यू में इंडियंस थे, दूसरे इंटरव्यू में जापानीज थे, और तीसरे इंटरव्यू में ताइवान से, मतलब काइंड ऑफ मिक्स। इंडियंस नहीं थे? हाँ, ताइवान और होंडा वाले में नहीं थे, एयरबस में इंडियंस थे। ताइवान की बात कर रहा था, तो ताइवान में कम्युनिकेशन कुछ गैप पड़ा तो नहीं ऑब्जर्व किया? हाँ, एक तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। हाँ, तो वही होता है कि आप स्लो बात करना है, ठीक है। और ये इंडियंस के साथ भी होता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग इंग्लिश के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं और कोई कोई नहीं होता है, और प्रोनाउंसिएशन के साथ सच में प्रॉब्लम आता है। तो ध्यान से सुनना और रिपीट करना अपनी चीजें, और स्लोली स्लोली बोलना। और ये हुआ था मेरा, मतलब होंडा में हुआ था, जहाँ पे मैं क्यू लर्निंग एक्सप्लेन कर रहा था। तो अगर मैं क्यू बोल दूं तो तुमको क्यू समझता है, उनको नहीं समझ आ रहा था क्यू, और मैं बोल रहा था सर क्यू लर्निंग, आई हैव यूज्ड क्यू लर्निंग। वो बोल रहे क्या? मैं बोल रहा क्यू लर्निंग, फिर वो कुछ तो अलग ही प्रोनाउंस कर रहे कि व्यू लर्निंग। मैं बोल रहा नहीं सर, व्यू नहीं, क्यू। फिर आखिर में मैंने ऐसा पेज पे लिखा और ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि क्यू लर्निंग, फिर वो दिख नहीं रहा है कैमरा रेजोल्यूशन, ऐसे मैं स्क्रीन पे लिख के बता रहा हूँ कि क्यू लर्निंग। तो मुझे ये एयरबस के बाद पता चली कि स्लोली स्लोली बात करो और काम दिखाओ खुद को, रादर देन एक्साइट होके फास्ट फास्ट बात करना। इससे प्रोनाउंसिएशन को
मदद होती है, क्योंकि सामने वाला आपकी चीजें ग्रास्प नहीं कर पाता उतनी फास्ट। तो याद मेरे भी एक सीनियर ने जब मैं बात कर रहा था तो उसने मेरे को लिटरली बोल के बताया, जो अभी सोनी जापान में सेलेक्ट हो चुका है, वो बोला कि मैं ऐसा इंटरव्यू दे रहा था, माय नेम इज प्रेम कुमार, इतना स्लोली बोल रहा था। तो अगर कोई तुम में से जापानीज इंटरव्यू देना चाहता है जापानीज या ताइवान में, इस चीज की भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैंने भी सोनी का इंटरव्यू दिया, लेकिन कुछ देर मैं बोल लूंगा माय नेम इज प्रेम कुमार, इतना बोलने के बाद हम ज्यादा देर स्लो नहीं बोल पाते, फिर अपने आप फास्ट निकल जाता है, आई स्टडीड एमटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, वो ये फास्ट निकल जाता है। तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है कि पूरा एक दो स्टांजा हम स्लो बोल पाए किसी के सामने, अगर तुम जापानीज के लिए बैठ रहे हो। इवन इंडियंस के लिए भी ये काम आता है, क्योंकि कभी कभी हम पहली बार सुन रहे होते हैं, वो साउथ से है तो उसका साउथ वाला एक्सेंट हो सकता है, या फिर वो नॉर्थ इंडियन है तो उसका एक्सेंट अलग हो सकता है, उनके प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं। जैसे साउथ वाले यच बोलते हैं, हम एच बोलते हैं, है ना, तो वो फर्क आता है। तो इंडियंस के साथ भी शायद से वर्क हो जाएगा, थोड़ा मीडियम स्पीड होना चाहिए, फास्ट तो फिर भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। इंटरव्यू बेस पे कोई डाउट्स है तुमको? मंथन, सोहम, अभिषेक, करण? एक्चुअली काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अनिकेत ने, सो ओके। ठीक है, अगर कोई डाउट्स नहीं भी होंगे तो like when we will be posting this video on YouTube, our mechanical official channel, we will give his LinkedIn profile link, and he has his own website, so his website link and Insta link as well. Those who are here and as well as those who are watching it on YouTube, you can contact him if he has no problem. You can call me. I think कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मतलब वापस से मैंने हाईजैक कर दिया है। ठीक है, that was nice one. You can contact him over LinkedIn or Insta. We will give you his link. So that's it then. Thank you, Aniket. Thanks for your time. Thanks, Aniket. Thanks, Aniket. Friends. Bye. Bye bye.